on the recording. Recording on. Your third list have come kya? Don't know. 23rd, okay. Fine, so tomorrow. Okay, fine. So, I'm reading the question. So, the background of this is we all know to calculate quartile, decile, percentile. So, this is a background we all know, right? And you have doubt in any of the things which you are doing or done, you can raise your hand and ask your doubt. Freedom. You can talk, any language is okay, till the point it is, what to say, filled with proper courtesy and manners. Language is okay. Are we clear on that? Chalo, let's read the question. Interesting one, exam question. I think Podar MCC में आया हुआ question है. Somebody from Podar MCC here. बाकी लोग केलकर सोमया सब आए है बच्चे. थर्ड लिस्ट के लिए रुके हैं. सस्पेंस है. ओके ठीक है चलो चलो लेट्स रीड. साथ में रीड करते हैं. स्टार्ट करें. चलो साथ में रीड करते हैं. मतलब रीड टुगेदर. In a group of 25 students, 7 students failed. So how many are there total? 25. And what happened to the 7 people? Failed. So 7 people have failed. And what else? 6 students got distinction. And the marks of remaining 12 students are 61, 36, 44, 59 and so on. Find the median marks of the whole group. Which marks? Median means what we will be find out? Very nice. Thank you. Good. So Q2 ढूंढेंगे हम. Ready? कौन सा type of data है? Very nice. Good. Appreciate. Raw data है. शाबाश. So ये रॉ डेटा है. परफेक्ट बोला आपने. तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है. फिर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Q2? फॉर्मूला आई आस्क्ड. No, you started but I couldn't hear. Sorry. Q2 is equal to, starting का वर्ड सुना ही नहीं दिया मुझे. Size. Okay. Size of I in bracket. I is inside the bracket, right? Outside. Okay. Into n plus 1 upon 4th observation. This is a formula you studied, no? Why I am asking you is because there are many ways to tell that. Some textbook write value, some write n plus 1 by 4 into ith observation. Plenty of ways. So I don't want to say something and you find it's new. So we continue with whatever you know. Comfort is better, no? We use the same language. That's why I'm asking you. So Q2 is size of the I into n plus 1 upon 4th observation. Very good. Out of this, but there was some steps before we use this formula. Very good. Ascending order. So the step was we have to arrange it in ascending order. What is the meaning of ascending order? Start from small to bigger. How many observations we have? How many are total? 25. 25. So how many observations you have to arrange? 25. Have they given 25? How will I arrange? That is the beauty of this question. Beauty means best part of the question. I give you 30 seconds. Think. You can answer.
I said no, bindas, wrong to wrong. Hindi, Marathi, Gujarati, Kachhi. Don't talk in French and German. बोलिए आप. बिंदास यार, रॉन्ग तो रॉन्ग है. कैसे करना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? 25 ऑब्जर्वेशन अरेंज करना है. डू वी एग्री विद दैट? 25 है आपके पास? है? नहीं है. 25 होना चाहिए, हमारे पास नहीं है. हमारे पास तो 12 ही है. तो कैसे अरेंज करेंगे? अभी कंसेप्ट मालूम है तो डायनेमिक क्वेश्चन ही करेंगे, स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे. अरे हिंट दिया है वो लोग ने. हाँ, कुछ तो बराबर सुनाई दे रहा है मुझे. 7 स्टूडेंट, तो मतलब क्या? लेस देन. हाँ बराबर. इतना क्या डरता है यार? क्या लेस देन 35? सिंपल. लेस देन 35. 35 से कम है, उसका कुछ भी रहने दो ना. 0 रहने दो, 34 रहने दो, 32 रहने दो. तुमको क्या करने का है? ऐसे कितना लोग है? 7 लोग है. एग्री है? हाँ, तो उसका मार्क्स को क्या एज्यूम करेंगे हम? विल एज्यूम इट एज व्हाट? x1, x2, x3 till how much? All this will be what? Less than 35. Communicating? और इधर मिनिमम कितना है? ये जो भी बच्चे लोग का मार्क्स है, इसमें मिनिमम कितना दिख रहा है? अरे इसमें मिनिमम कितना दिख रहा है? 36. तो ऑब्वियसली ये जो बच्चे लोग हैं वो कहाँ आएंगे? स्टार्टिंग में आएंगे कि एंडिंग में आएंगे? तो अपना कैसे अरेंज होएगा बोलो? x1, x2, x3, x4, x5 डॉट 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 x7. उसके बाद कौन स्टार्ट होएगा? लवली, 36. समझ गया? तो 7 ये है, प्लस ये कितने हैं? कितना हो गया? 19 का बंदोबस्त हो गया. कितने बाकी है? गुड. डिस्टिंक्शन मतलब क्या? अच्छा, डिस्टिंक्शन सुना ही नहीं आपने? अरे नहीं सुना है तो ना बोलो यार. सुना है तो हाँ बोलो, नहीं सुना है तो ना बोलो. ये अच्छा तरीका है. आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैं भी कुछ नहीं बोलेगा. फिर बज गया 12:30. बोला घर में, बोला क्या सीखा? कुछ नहीं, हम बस खामोश थे. क्या खामोश? मारेंगे वो लोग मुझे. बताइए डिस्टिंक्शन मतलब क्या? स्टेट बोर्ड वाले को तो मालूम होना चाहिए भाई, वो मार्कशीट में आता है डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास. हाँ बराबर है. 75% एंड अबव. नहीं मालूम है, इट्स ओके. 75 एंड अबव इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्टिंक्शन. ऐसा कितना बच्चे लोग हैं? 6. करेक्ट ना? हाँ, उसको नंबर दे दो. क्या नाम देगा उनका? ना मार्क 75 से ज्यादा होगा तो उनको अपन नाम नंबर देते थे. क्या नाम देंगे बोलो? y1, y2 टिल व्हाट? वेरी गुड. अब इधर देखो हाईएस्ट मार्क्स कितना है? ये बच्चों लोग का हाईएस्ट मार्क कितना है? 64. तो ऑब्वियसली y1 का मार्क्स कितना है? अरे y1 का मार्क्स कितना है? 75 या उससे ऊपर होगा तो 64 के बाद आएगा. कितना जमा हो गया? विजन आया बराबर. कहां से शुरू होएगा बोलो? किधर तक जाएगा? x7. किधर तक जाएगा बोला? x2 तक नहीं, x7 तक जाएगा. फिर कौन रहेगा? 36. फिर उसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग में. जरा बोलो, ओरली बोलो. 36 के बाद कौन आने वाला है? फिर 61. नो हाँ, 61, 64. y1, y2, y3, y4, y5, y6 टोटल कितने हो गए? नाउ इज इट एसेंडिंग? नाउ फॉर्मूला पॉसिबल?
What is the formula? Q2 is equal to size of I into n plus 1 upon 4 ऑब्जर्वेशन. इसमें क्या मालूम है? What is I का वैल्यू? What is n का वैल्यू? डाल दो, आंसर आ गया. नाइस क्वेश्चन, इंटेलिजेंट. कर दो. ऐसा आया है, मैं बोला है एमसीसी पोदर में पूछा है, और आधा लोग को लगा प्रिंटिंग मिस्टेक है. वो घर पे जाके बोला आई बग प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, मार्क्सर नाही दिलं आणि सांगितलं मीडियन करा. ले लपड़ा करता. तो लिखिए, आई विल डिक्टेट द आंसर, आई विल डिक्टेट द आंसर. राइट डाउन. You need not write the question because we'll give you the textbook. Just write exercise 2. Just write exercise 2. And in that you can write question number 6. Exercise 2, question number 6. लिखा आपने? Okay. Now write the steps. We want the steps because exam में marks are there for the steps also. Okay. So what are the steps we'll write? We'll write here the steps. Let marks of 7 students failed be x1 x2 dot 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 x7. ठीक है. And marks of 6 students with distinction be y1 y2 dot 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 y6. ठीक है. डन. अभी आप स्टेप बोलिए. व्हाट इज स्टेप 1? क्या लिखेंगे हम? वेरी गुड. अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. बोलिए, पहला किसका मार्क्स आने वाला है? बोलो. आपको बोलना है यार. मार्क्स है ना उसका. हाँ, तो क्या लिखोगे? x1 x2 x3. किधर तक उसका मार्क्स है? x7. फिर कौन आएगा वो मैं बोलूंगा आपको, बिकॉज आपने ऑलरेडी बोल दिया मुझे. तो था 36 37 38 39 41 41, then 44, then 52, 56, 52, 56, then 59, 61, then 64. आगे 12 स्टूडेंट्स है क्या? गिना आपने? 12 है 12. हाँ, इसके बाद कौन आने वाला बोलो? y1 y2 y3 y4 y5 y6. Is it in ascending order? Yes. What is step number 2? Come on. Total number of observations. Total number of observations. Total number of observations. बोलिए. Bracket capital N. How much is the total number of observations? 25. 25. 25. Are we clear on it? Okay. Chalo. Next. The next one. Then we write. What are we supposed to find out? Median. Median is equal to Q2 is equal to question mark.
Therefore, I is equal to, what is the value of I will take? 2. I is 2. Now we'll write the formula. Q2 is equal to, what is the formula we write? Size. Size, no? Size of I into n plus 1 upon fourth observation is equal to size of 2 into 25 plus 1 upon फोर्थ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन पूरा लिखने का, शॉर्टकट मत करना. OBS, OB, OO. एग्जाम में मार्क्स काटेंगे वो लोग, शॉर्टकट लिखोगे आप, बिकॉज आपको अच्छा लगता है शॉर्टकट. तो अभी क्या हो जाएगा? साइज ऑफ 2 into 26/4. So that will get cancelled. 1s are 2s are, and 1s are 13s are. So size of which observation? 13th observation. चेक करिए आप, विच इज द 13th ऑब्जर्वेशन. आपका डेटा लिस्ट चेक करो. 41. आर वी ऑल गेटिंग 41? चलो चेक किया आपने यहां तक? तो लेट्स गो बैक एंड चेक 13th. इधर तक हाउ व्हाट इज द काउंट टिल हियर? व्हाट इज द काउंट टिल हियर? कम ऑन. This is 7. So this is 7. So how do I count? 8, 9, 10, 11, 12, 13. So which is the one in the 13th position? लिख दो यहाँ पर. Therefore, Q2 is equal to 41. Can I end my answer like this? बोलो बोलो. 41 मार्क्स. और कुछ? और एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिसिंग है, मीडियन. वो लोग ने पूछा मीडियन. जैसे पूछा है वैसे लिखिए. आपको जैसा पसंद है वैसा मत लिखिए. तो आप लिख दोगे क्लियरली, मीडियन इज इक्वल टू 41 मार्क्स. आर वी क्लियर ऑन दैट? क्वेश्चन समझा आपको? हाँ. सो विल डू गुड क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे भैया. जो आपको कॉन्सेप्ट जो है आपने सीखा, दैट विल बी टेस्टेड परफेक्टली. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ऑल सेट, रेडी? Question number 7, 7th one. I'm reading the question. Let's see. All ready? So all I finished or still should I wait? हाँ बोलो यार, तुम ऐसे इंटरेक्टिव होना चाहिए ना. इट इज टू बी टू वे कम्युनिकेशन. चलो रीड करते हैं. क्या लिखा है? द मीडियन वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 79 स्टूडेंट्स is found to be 55 kgs. 6 more students were added to this group whose weights are 50, 51, 52, 60 and 61 kgs. What will be the value of median of the combined group if the lowest and highest weights were 53 kgs and 59? I give you 1 minute to think and tell me the steps. फिर मैं डिस्कस करूंगा. 1 मिनट का टाइम है आपके पास. दैट इज अ नॉर्मल पैटर्न आई डू. आई विल रीड, देन यू हैव टू थिंक. आइडिया लेके आने का जुगाड़.
हो गया 1 मिनट. एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर थिंकिंग. एटलीस्ट ऐसा फेस से लग रहा था आप सोच रहे. बोले अंदर कोई भी सोचता रहेगा, बट एटलीस्ट फेस से लग रहा था आप बहुत गहराई से सोच रहे हैं. बहुत अच्छी बात है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इवन इफ यू नो और नॉट नो, बट एटलीस्ट यू शुड रीड. प्लीज, ऑल इज योर्स. स्टेप्स. अभी आपका तारीफ किया मैंने कि बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और 2 मिनट के बाद आप था एकदम खामोश है. हम तो सोच ही नहीं रहा था. ऐसा आपका परसेप्शन है. अरे ट्राई तो करो यार, एक स्टेप तो बोलो. क्या करना चाहिए? हाँ. या आपने नहीं बुलाया, आप बुलाया. अच्छा. आई हर्ड समबडी कॉलिंग. नोबडी. ओके, इट्स ओके. चलो. मैं थोड़ा हिंट दे दूंगा. मैं हिंट देता हूं. लेट्स सी इफ यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड. क्या दिया हुआ है लाइन नंबर 1 में? मीडियन. मीडियन इज गिवन. व्हाट इज मीडियन? मतलब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? वेरी गुड. हाउ मच इज Q2? 79. 55. 55. Good. 55 kg is the median. Agree? हाँ. मीडियन का सिंपल भाषा में वर्ड बोलो. व्हाट इज मीडियन? सिंपल भाषा. मिडिल वैल्यू. वेरी गुड. मिडिल वैल्यू. हाँ, हिंट आपके पास ही है, तो मैंने तो कुछ बोला भी नहीं. हो गया बस. सॉल्व. इजी. अगर आपको मालूम है मीडियन मिडिल वैल्यू है जिसका वैल्यू 55 kgs है, बहुत लल्लू क्वेश्चन है फिर ये. मैं ऐसा रुका, बहुत जन को मजा आ रहा है. बोला ऐसे ही रुकने दे, इसका हाथ दुखेगा, अपने आप नीचे रखेगा. बोलिए, आप बताइए. अरे मिडिल में कौन है? 55 kgs है. हाँ. कितना लोग है टोटल? इधर से इधर 79 लोग है ना. हाँ, बीच में ही रखता हूं मैं इसको. 79 पीपल आर स्टैंडिंग. और ये जो बीच में है बच्चा, उसका वजन 55 kgs है. और भी एक डेटा दिया है. चलो, ये डेटा आपको फिट करने को आना चाहिए. यहां जो बच्चा है, यहां पर जो बच्चा है, यहां पर जो बच्चा है, उसका वेट इज गिवन. हाँ, 53 kgs. एंड व्हाट is it given or not given? How do you know? Where is it given? क्या लिखा है? Lowest. Lowest 53. And what else? Highest 59. मैं हिंट दे रहा हूं, आंसर नहीं बोल रहे. मैं हिंट दूंगा, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा. आप नहीं बोलोगे तो और एक हिंट दूंगा मैं. नहीं बोलोगे तो आंसर बोलूंगा मैं, बट आपको तो सोचना ही पड़ेगा ना. क्या हो गया? इतना हिंट दे दिया मैंने. अरे वेर इज अ नया बच्चा? हु आर द न्यू पीपल हियर? 6 are new people. Their weight is given. Feeling coming. Where this बच्चा will stand? चेक चेक. उनका वजन देख के बोलो कहां खड़े रहने वाले. हाँ, 53 के पहले कितना लोग है? कौन है 53 के पहले? चलो, हु आर द पीपल बिफोर 53? नहीं सुनाई दे रहा है मुझे. 50. हाँ, 50, 51, 52. हाँ, 59 के आगे कौन कौन है? 59.5, 60. आंसर आ गया.
ओ माय गॉड, आंसर सामने फिर भी आप इतना सोच रहे हैं. हाँ, ये कुछ बोल रही है. शी इज सेइंग सर इट विल बी 55 ओनली. How many agree with her? It will be 55 only. 2, 3, 3, 1, little swinging. 5, 1, 2, 2, 3, only 1. And here, yes but no. हाँ, अरे इजी है भाई, 55 ही रहेगा. क्यों मालूम है? क्यों 55 रहेगा मालूम है? सिंपल सिंपल सिंपल. सुनो, ऐकून घ्या. 3 people. 3 people. She is the center one. हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? सना. तो सना is at the center. हाँ. Now listen. 3 girls shift to the right. 1, 2, 3. And another 3 girls shift to the left. So how many girls on this side? Huh? How many on this side? How 4? 1 extra 3. डोंट से उतना मेमोरी भी नहीं है. डोंट से मेमोरी फुल है. बहुत गाना है. 4 नो. इधर कितना है? हाउ? 1 plus 3. Who is at the center now? Why? Why Sana remains at the center even though new people have come? हाँ, because equal number have come on the right side and on the left side. So what will happen to the center? Remains the same. Yes. That is the beauty of this question. अपने को लगेगा क्या एकदम गूगली गूगली नहीं, टप्पी टप्पी. आपको क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? हाँ. I repeat for people who didn't understand. Listen carefully, I repeat. Total 79 students. हाँ ना बोलना है तो ही मुझे मालूम पड़ेगा. मैं नहीं सीख रहा हूं. So please हाँ ना बोलिए आप. Total 79. Lowest बच्चा 53. Highest बच्चा 59. Center बच्चा 55. How many people joining? 6. But what is the beauty of those 6? 3 will be before the lowest and 3 will be after the highest. So what will happen? Center. And what is median? Center. Center remains the. So what will be the median of the new group? 4 mark का question है. Got that? Should I repeat कि clear है? लिख दे. Write down. Median weight of 79 students. Median weight of 79 students is equal to 55 kgs. Lowest weight is equal to 53 kgs. Highest weight is equal to 59 kgs. Correct? Weight of 6 more students. Weight of 6 more students. 50, 51, 52, 59.5,
60, 61 kgs. Are we clear? Next line. The next line में you will draw this picture. ये picture draw कर लो pencil से. Can draw this picture. It will be easy for you to हाँ पेंसिल से लिख लो, ड्रॉ कर लो, जो भी आप बोलो. तो क्या इजी रहेगा? इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई. डन. अच्छा साना, सीए फाइनल का रिकॉर्डिंग डाल. चलो डन, फिनिश. चलिए राइट डाउन लिखो. ड्रॉ किया आपने? 50, 51 and 52. 50, 51 and 52 will be before the lowest and 59.5, 60 and 61 kgs will be after the highest. Therefore, median, comma, the middle observation, median, comma, the middle observation will remain the same. Middle observation will remain the same. Clear है इधर तो? Will remain the same. Therefore, median of 85 students, bracket 79 plus 6, will also be डैश kgs. मैं नहीं लिखने वाला हूं डैश, मतलब आप डैश मत लिखना उधर. बोलिए 55 kgs. I will not write, you have to write. Have you written that? Good question. सीखने मिला बराबर? एग्जाम में आएगा, करोगे? हाँ. Where they pick this question from? This question they pick from CA Foundation. तो CA Foundation से उठा के ऐसा एग्जाम में डाल दिया है. ऐसे सब नहीं डालते हैं, नहीं तो आप बोलेगा आता मैथ्स नहीं करना है, लपड़े बदल हो गए. एक आधा ऐसा डालते हैं टेस्टिंग. इट्स गुड नो समटाइम्स टू टेस्ट योर नॉलेज. चलो नेक्स्ट. So that finishes that exercise number 2.
since you said you already done. This one is done, worker ka production and all. Have you done this question? Not done? Okay. This one, missing frequency. Huh? अच्छा, that you have done. Good. So fourth you are not done, right? हाँ, चलो फोर्थ करेंगे हम. वापस रीड करेंगे साथ में. 1 मिनट में दूंगा, आपको स्ट्रेटेजी बनाना है, फिर हम डिस्कस करेंगे. रेडी है आप? चलो रीड करते हैं, स्टार्ट करिए. इन अ पर्टिकुलर फैक्ट्री वर्कर्स प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ आउटपुट यूनिट्स. आउटपुट मतलब प्रोडक्शन. जैसा लाइक फॉर एग्जाम्पल नीचे ज्वेलरी शॉप है, सो दे विल मेक ज्वेलरी. उसके बाजू में एक डबल रोटी वाले का दुकान है, सो ही विल मेक डबल रोटी. दाबेली, व्हाटएवर. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन. आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. हाउ इज इट गिवन? 70 to 74, 75 to 79 and so on till what? 100 to 104. Number of worker is given 40, 45, 50 and so on. Okay, what they want? Find the percentage of workers who have produced less than 82 output units. Minutes time starts now. Think, strategy, steps. मैं टाइमर डाल रहा हूं, 1 मिनट. आप सोच के बताइए. हाँ चलो, टाइम आउट. स्टेप्स. फ्रीडम, रॉन्ग तो रॉन्ग, बिंदास रहने का. रॉन्ग तो रॉन्ग. हाँ, वाह गुड. कंटिन्यूअस करना पड़ेगा. लवली. कैसे करते हैं कंटिन्यूअस? 0.5 पीछे, 0.5 आगे. तो बोलिए, 2-3 एग्जाम्पल बोलिए. 69.5 टू 74.5. इसमें माइनस करो 74.5, 79.5. फिर तो चुक चुक रेलगाड़ी जैसे जाएगा. गुड, फैंटास्टिक. कंटिन्यूअस कर दो. चलो, आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर यू स्टेड टिल नाउ. कंटिन्यूअस. गुड. लेस देन CF बनाओगे. वेरी नाइस. तो 2 हैप्पीनेस. हैप्पीनेस 1, हैप्पीनेस 2. बस छोड़ के आ जाएगा. हाँ, शी इज कॉलिंग. शी सेइंग यहां पर 80 to 85 दिया है, यहां पर 85 to 89 दिया है. इधर कंटिन्यूअस है, बाकी के कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसा आप बोल रहे हैं. चलो, शी सेइंग सर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मेरे ख्याल से वो गड़बड़ शायद उनका प्रिंटिंग एरर होना चाहिए, तो इसको अपन 84 कर. फाइन. क्या करना है? हाथ नीचे 85 करना है. हाँ सॉरी, तू ऐसे ही रहे भाई. हाँ हाँ, बाकी बराबर है. हाँ, नेक्स्ट. हाँ, शी इज सेइंग समथिंग. P80 ढूंढना है.
18 ढूंढना है. हाउ डू यू नो P18 ढूंढना है? आउटपुट, नो? And output is 82. And output total is not 100. The output can go up to 104 also. Chalo, fine. I want you to think and try. Wrong to wrong, bindas. No money for telling wrong. हाँ, ये कुछ बोल रहा है. P82. What is the meaning of P82? अगर मैं बोलूंगा P82 मतलब क्या हो गया, उसका मीनिंग क्या हुआ बोलो? 82% ऑफ आउटपुट, ऐसा हो गया. डू दे वॉन्ट 82% ऑफ द आउटपुट? नो नो नो, दे डोंट वॉन्ट 82%. Wrong. Where they said 82%? They are saying what percentage, कितना परसेंट लोग ने 82 या उससे कम बनाया है. वो ऐसा नहीं बोल रहे 82% लोग ने कितना बनाया. नहीं समझा आपको? लिसन लिसन, वन में. हेलो, अपन इसको एक काम करते, अपना फेवरेट में लेके आते. अपना फेवरेट है मार्क्स. वही अपने को समझता है, बाकी कुछ समझता ही नहीं. लेकिन अपना मार्क्स जो है 104 तक है. ये नया नया एग्जाम है. हाँ, तो नया एग्जाम है 104 मार्क तक है. समझ रहे हैं? आपको देखो अभी फटाफट समझेगा, बिकॉज यू कोलेट सो वेल टू मार्क्स एंड आउटपुट टू इज फैक्ट्री, मतलब कमर्शियल हो गया. आउटपुट सुनते ये क्या लपड़ था, थोड़ा अपने को जो अच्छा लगता है उसमें आते. देखो आपको आंसर बराबर आएगा. आई कुड सी सम क्लैरिटी इन योर माइंड. सो आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन फॉर यू, कन्वर्टिंग दिस इन मार्क्स. ठीक है? ये वर्कर नहीं भाई, स्टूडेंट. स्टूडेंट, हाँ अभी पढ़ो, अभी पढ़ो. देखो ये मार्क्स है, हाँ ना बोलने का. उतना तो मैं तो ही, देन ओनली आई विल नो ना वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट. आई एम डूइंग दिस फॉर यू. मार्क्स है, कहां से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है? ये कौन है? बच्चे लोग हैं. What is the meaning? 72, 74, 40. 40 students have scored between 70 and 74. अरे easy है भाई, काय को टेंशन ले रहा है. हाँ, and don't be under a pressure to solve. Understand first. इसका क्या मीनिंग है? 45 बच्चे लोग have scored 75 to 79. Do you agree with this? Now listen. अभी इसको पढ़ो. Find the percentage of students who have scored what? Find the percentage of students who have scored less than 82 marks. So if I find P82, will I get percentage of students scoring less than 82 marks? No. That will give me 82% students को कितना मार्क्स का कट ऑफ मिला. वो लोग को वो नहीं चाहिए, वो लोग को चाहिए कि 82 या उससे कम कितने बच्चों को मिला. गॉट द पॉइंट? अंडरस्टूड? तो आपको क्या ढूंढना है? परसेंटेज. इजी है, दिख रहा है यहां पर, हिंट है. नहीं है तो मैं और एक एग्जांपल दूंगा. चलो आपका थोड़ा और इंटरप्रिटेशन सुधार देते हैं. इफ आई राइट, इसका आंसर चाहिए मेरे को. इफ आई राइट P60 is 90, इसका मीनिंग समझा दो. इसका मीनिंग हे तुमचं झालं होतं ना पर्सेंटाईल, मग काय मीनिंग सांगा. एकदम सब लोग कवि लोग हैं, ऐसा एकदम ऐसा हाँ ऐसा गा रहे हैं आप. आवाज एकदम धीमे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपका क्या धीमे में रुक जाता है. जरा आवाज
आप इतना घबराते क्यों है? रॉन्ग तो रॉन्ग बोल दिया ना, आप इतने डरते क्या है? हाँ, 60% students have scored बोलो बराबर है? रॉन्ग, आधा रॉन्ग है, आधा माल गायब है। रॉन्ग नहीं, आधा माल गायब है। नो, कम ऑन, चलो और कौन बचाएगा मुझे? हाँ, इसका ये Q2 था ना 55, मीनिंग सिखा रहे हैं मैं। Q2 55, हाँ या ना? अरे ये वाला किया था ना अभी। हाँ, इतना मेमोरी फुल मत रखो, थोड़ा जगह मेरे लिए भी रखो। Q2 55, Q2 55, can I say P50 is 55 kgs? हाँ, is Q2 and P55 same? Yes or no? Q2 is middle, P55 middle, और एक नाम था ना इसका D5. What is D5? Middle. आया ना? क्या हो गया? ये मैंने रॉन्ग लिखा है क्या? ये समझ बराबर है कि नहीं है? हाँ, अब इसका मीनिंग, ये मेरा पर्पस था ही नहीं, तुमने मुझे ऐसे इसमें ऐसा ऐसा देख रहे हैं जैसे कि पहली बार देख रहे हैं आप। अभी इसको बोलिए, P50 अगर 55 है, व्हाट इज द मीनिंग? 50% of students have weight 55 kgs और लेस। ये कौन है? 55 kg वाला है ना? कितना बच्चा है इधर? एक ही है, एक ही है। 50% बच्चा नहीं है उधर। आप ऐसा बोल रहे 50% बच्चे लोग का 55 किलो है। 50% बच्चे लोग का 55 किलो नहीं है, एक बच्चे का 55 है, वो सेंटर में है। तो P50 अगर 55 है, उसका मीनिंग क्या हुआ? 50% ऑफ चिल्ड्रेन हैव वेट 55 kgs और लेस। नहीं समझा आपको? और व्हाट इज द अदर मीनिंग? 50% of the students have weight 55 kgs or more. That is why he is at the center. He is saying I am at the, like here Sana was at the center. She is saying 4 girls are here and 4 girls are here. That is why I am at the center. In other words, she is saying 50% लोग इधर है, 50% लोग इधर है. That is the meaning of a percentile. So if I say P60 is 90, what is the meaning of P60 is 90? Please understand meaning, otherwise tough question करना difficult हो जाएगा आपके लिए, फिर आप बाय ऐड करोगे, तो उससे जो समझ के करो. What is P60 is 90? 60% of students have scored 90 or less. Less. It is less. आप बोले क्यों मोर नहीं? क्योंकि आप कौन सा टाइप ऑफ सीएफ बनाते हो, इसलिए वो लेस है. ऐसा कनेक्टिंग याद रखने का. मुझे कैसा मालूम पड़ेगा लेस देन है? बिकॉज आप लेस देन सीएफ बनाते हो. क्लैरिटी? आर वी कम्युनिकेटिंग? हाँ, मैं और एक एग्जांपल बोलने वाला हूं, बिकॉज इसका आंसर आप लेके आओगे. इसे मैं इतना सारा स्टोरी कर रहा हूं. और एक एग्जांपल. अरे डरो मत यार, तुम क्यों घबराते हो? मैं बताएगा. टेल मी, P25 is 80. मीनिंग बताओ. 25% of students have scored
80% और लेस। अब समझ में आया? समझा कि नहीं समझा? हाँ, तो इसमें से परसेंटेज कौन है? परसेंटेज कौन है? हाँ, तो ये आप बोलते हो 25% ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 80 और लेस। ये बात समझ में आया आपको? आया कि नहीं आया? हाँ, अभी इधर क्या लिखा? P60 is 90, तो आप क्या लिख रहे हो? 60% ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 90 और लेस। और इधर मुझे क्या चाहिए? फाइंड द परसेंटेज चाहिए ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 82 और लेस। तो मुझे परसेंटेज मालूम है कि ढूंढना है? तो परसेंटेज कौन है? ये परसेंटेज है। तो वो कौन है? हम लोग क्या लिखते थे? पी आई इज 82। आई इज क्वेश्चन। नहीं समझा आपको? व्हाट इज द मीनिंग? पी आई इज 82। I percentage of students have scored 82 और लेस। तो हमको किसका वैल्यू ढूंढना है? I का। तो जब भी परसेंटेज मिसिंग है मतलब कौन मिसिंग है? I। अब याद रहेगा? कंफ्यूजन है? शुड आई रिपीट? क्लैरिटी? हाँ, स्टेप्स बोलो, क्या क्या स्टेप्स करने वाले हम? कंटिन्यूअस क्लास। और क्या करने वाले हैं? लेस देन सी है। तो स्टेप क्या लिखेंगे? लेट पी आई इज इक्वल टू 82, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर परसेंटाइल का फॉर्मूला लगाने का। कौन सा कैटेगरी में ये? कौन सा टाइप ऑफ डेटा है? कंटिन्यूअस डेटा। याद है स्टेप्स कंटिन्यूअस का? पक्का है? श्योर है? कैन आई ट्रस्ट यू? लिखो वहां पर। ये सबको समझा ना क्वेश्चन? ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, चैलेंजर्स है क्वेश्चंस। एग्जाम में ऐसा 4-4 मार्क का आता है, तो आप क्या नहीं करके जाएंगे ना, फिर गड़बड़ हो जाता है। लिख दो वहां पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 यहां पर हम लिख देंगे आउटपुट यूनिट्स, the number of workers is your CF, sorry F, बाजू में less than CF 69.5 to 74.5 जैसा अपन ने डिस्कस किया था, मैं उसको कंटिन्यूअस बना रहा हूँ। हम फिर से अच्छे से रिवाइज करेंगे, साथ में रहिए आप। Number of workers 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100. Hello, who will tell me less than CF? Anybody interested? Less than CF बोलने में भाई? कोई बोलेगा less than CF? How to do? हाँ, he is saying sir I'll tell. बोलो 40. ये फर्स्ट सेम रहेगा 40, 40 प्लस 45 85, 265, 444 एंड समेशन एफ भी आ जाएगा, फिर 445।
5/4 कैसा लिख रहे हैं? हाँ, आ रहा है सबको? तो आपका टोटल ऑफ एफ, समेशन एफ इज 445 टोटल समेशन एफ, बराबर? क्लियर और नो? लेट pi is equal to 82 units. I is question mark. It means I% of workers have produced, I% of workers have produced, क्या बोलो? Produced what? Units और क्या? Less. ये मीनिंग मैं आपके लिए लिखा रहा हूं खास, तो आपको पता चलेगा आपने क्या किया है। ठीक है, समझ के करिए, उतना बेहतर होगा। और ये सब है आपके क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में। दिस इज अ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, सो डोंट फील इट्स टफ, हाउ विल आई डू, दैट्स हाउ इट कम्स इन द एग्जाम। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डूइंग दिस। आर वी क्लियर? हाँ, सो ये क्लियर है, समझ में आया? अब बताइए, अब जर्नी बताइए कैसे करने वाला हूँ। परसेंटाइल तो आपको मालूम है, स्टेप बताइए। Please guide me with the steps. You can turn the pages back if you want, but guide me with the steps. हाँ, very good. Mi क्या रहेगा? Mi n upon ni upon क्या? 100. ni upon 100 कर दो। So we'll first find mi. mi is equal to ni अपॉन 100। तो आई तो नहीं मालूम है, तो एम आई तो एम आई रहेगा। एंड हाउ मच इज योर 100 बोलो? फिर हाउ मच इज योर एन? 445 आई अपॉन 100, 445 आई अपॉन 100। डेसिमल में करना है कि फ्रैक्शन में रखना है? अच्छा, उसमें एक झगड़ा है। ठीक है, चलो we will keep it here and 4.45i, जरूरत पड़ेगा तो बाद में करेंगे फ्रैक्शन में। डन ले लिया? चलो फिर नेक्स्ट स्टेप बोलिए। हाँ, क्लास इंटरवल ढूंढना पड़ेगा ना। हाँ बोलिए, कहां पर है मेरा क्लास इंटरवल? क्वेश्चन ने दिया है, क्वेश्चन ने दिया है भाई, बोलो। क्वेश्चन हैज गिवन यू हिंट। कहां होना चाहिए तुम्हारा पीआई क्लास? 79.52। क्यों ऐसा? बिकॉज ये क्या है, कौन सा आउटपुट है? हाउ मेनी यूनिट्स आर दे टॉकिंग अबाउट? 82 यूनिट्स। एंड वेयर डज 82 यूनिट्स लाई? 79.52 84.5। आर यू क्लियर ऑन इट? राइट डाउन, उधर लिखो। PI is equal to 82 units. Therefore, percentile class is equal to 79.5 to 84.5. What happened? Some doubt here? Any doubt is there? Get it clarified. 79.5 to 84.5. यहां पर है कनेक्शन 82 है, इसलिए यहां पर आया हो। डन? तो बॉक्स कर दो उसको, ऊपर जाके बॉक्स करिए, तो बॉक्स में डाल दो। ये कंपलसरी है एग्जाम में। बॉक्स करिए और लेफ्ट साइड में लिखिए पीआई क्लास। लेफ्ट साइड में लिखना है। नॉर्मली कौन सा साइड में लिखते थे मालूम है?
राइट साइड पे, बट इधर लेफ्ट में लिखने का। क्यों लेफ्ट में लिखा मालूम है मैंने इधर? बिकॉज हमने CF देख के नहीं पता लगाया। क्या देख के पता लगाया? 82 देख के पता लगाया। What we have seen indicates that we have seen 82 and fixed it here. That's why on the left side. Done? चलो इसमें क्या क्या पिक करोगे? L. What is your L? Very good. L is 79.5. और क्या पिक करोगे बोलो? F. कितना है तुम्हारा F? अरे बोलो 50. और क्या पिक करोगे? कितना है CF? वेरी गुड। F पिक किया आपने, CF पिक किया आपने, H कितना है तुम्हारा H? 5 यूनिट्स का है, 5 यूनिट्स का है। आर वी क्लियर टिल हियर? चलो फाइन, गुड गुड प्रोग्रेस टिल नाउ। फॉर्मूला बताइए, फुल टेल मी द फॉर्मूला। हाँ ये बोल रहा है सर मैं बोलूंगा फॉर्मूला। H upon F bracket Mi minus CF. Is he right? Yes, perfect. करिए। चलो PI मालूम है 82, स्लो स्लो करिए। ये 79.5, ये 5, ये 50, ये 4.45 I और ये 85। स्लो स्लो करिए, अच्छे से करिए। सबसे पहला किसको शिफ्ट करेगा बोलो? ये 79.5 को वहां शिफ्ट कर दो। थोड़ा इस साइड का वजन कम करो, इस साइड का वजन कम करो। इज इक्वल टू, और ये कट भी हो जाएगा, 5 1 जार 5 10 जार, तो 1/10 4.45 I माइनस 85। स्लो स्लो करिए, डरना मत, मैं बोर्ड में करने वाला हूं। सब्ट्रैक्ट करने आता है 82 माइनस 79.5। हाँ, ये कितना होता है? क्या करना है? 1/10 दिख रहा है, 1/10 को क्या करोगे आप? 1/10 को क्या करने का? शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस विल मेक इट इजी। ये सबसे आसान तरीका है काम करने का। बहुत सारा तरीका है बट दिस इज अ फास्टर। आर वी क्लियर? तो 2.5 इंटू 10 is 4.45 I minus 85। तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 4.45 I माइनस 85। क्या करेंगे? सबसे पहला किसको शिफ्ट कर देगा? यहाँ पर माइनस 85 को शिफ्ट कर दो। ये हो जाएगा 110 4.45 I, करेक्ट। तो 4.45 को नीचे लेके आएंगे, इज इक्वल टू I। स्लो स्लो करते जाइए, डेसिमल निकाल दो। हाउ डू यू रिमूव द डेसिमल? इनटू 100 into 100 will remove the decimal faster। 110 into 100 upon 445 is I
आ रहा है आपको? व्हाट इज द मीनिंग? लेट अस कैंसिल, डू द कैंसिलेशन। कितना से जाएगा? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स बोलेंगे इसका हो जाएगा ये होएगा 8 5 आर 40, 9 आर 45 एंड ये हो जाएगा 5 से करेंगे 22। हाँ हाँ ऐसा है। हाँ तो ये कितना हो जाएगा देखो, 2200 अपॉन 89। ऐसा है क्या आपको? अरे ऐसा है कि नहीं? ये कट तो नहीं होगा, तो डिवाइड कर देंगे। ऐसा है भाई, एग्जाम में आता है यार, तुम मुझे क्यों गुस्सा कर रहा है? बहुत लोग रहे काय को कर रहे हैं। अरे है ऐसा, परीक्षा में आता है। हाँ बोलो, आप ये करने तो दो यार, डराओ मत। हाँ कैलकुलेशन करने दो। यस, हाँ 18,178। जो लोग कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग थोड़ा गुस्से में हैं। तो 420 50 से तो 4 टाइम्स 36 3 3 You can do till 2 decimals. I have done the calculations on the right side for you to check. Everybody has to do this, otherwise exam will be a question mark. Calculations will be there in the exam and they will be in decimals. डेसिमल फ्रैक्शन परीक्षा में आएगा, तो आपका हैबिट होना चाहिए राइट साइड में पेंसिल से कैलकुलेशन करने का। तो सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। डोंट थिंक राउंड ऑफ गोल गोल नंबर आएगा, पर डेसिमल में भी आएगा इससे। बट आई विल डू ऑल कैलकुलेशंस ऑन द बोर्ड। आर वी क्लियर ऑन इट? ये फाइनल आंसर लिखो यार, तुम पैकिंग कर रहे हैं। ये किया क्या, मिला क्या इधर था? तो लिखो उधर नीचे, therefore P24.71 is equal to 82। क्यों मालूम है ना? सिंस PI was 82, याद है क्या? So P24.71 is 82 means, what is the meaning? What is the meaning? Meaning सांगा हो 24.71% of workers have produced क्या? 82 units और लेस। ऐसा लिखोगे 4 मार्क मिलेगा। आई होप ऑल कुड गेट दैट। कुछ समझ में आया आपको कि नहीं आया? हाँ ऐसा एकदम टफ टफ करने आया तो होएगा ना भाई, ऐसा कॉलेज जाने का। नहीं तो आपको लगेगा ऐसा कॉलेज मतलब बड़ा गार्डन रहेगा, बहुत बड़ा कैंटीन रहेगा और बहुत सारा जार्ड रहेगा और बहुत सारा लोग गाना गाता रहेगा और प्रिंसिपल को कुछ आता नहीं रहेगा। तो ऐसा सब मत समझिए, जरा अच्छे से पढ़िए। ओके चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, आई अप्रिशिएट।